Good morning, student. My name is Shruti Jain, and I'm your faculty of auditing. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So again, we are in a situation of pandemic. Hope everyone is taking care of themselves and their loved one. Please do not step out of your home until it is very necessary. So that's why your college has taken an initiative that so that you can cover all your lectures. Basically, you haven't attended any of your classes regarding your third year semester, and you know that all the lectures are very important for you, whether it's your objective examination or it's your written examination. You have to take your lectures on regular basis, so it's very important for you so that you should go through all these videos and lectures which your teachers are uploading on your YouTube channel. So basically in this lectures we will be covering your whole syllabus. This is the concisest material that we are hoping and we are providing you, so that you can go through these videos and you can get an overview of your subjects, what you will be going to study and what is your in your syllabus. So I will be teaching you auditing, and my name is Shruti Jan. Hope you will get. If you are having any doubts regarding any topic, please do ask me. You are having. I'm in your group. If you are having any trouble or any sort of problem, please do ask me in your WhatsApp group. So let's start this chapter. I will basically in this video I will give you an intro of what is auditing, auditing क्या होता है and how it is different from accounting. Basically the word auditing, what does auditing means? So बहुत स्टूडेंट्स को बहुत confusion होता है auditing और accountancy को लेके, that auditing and accountancy both are the same terms, but they are the completely different terms. What auditing means, it's a means of checking the accounts which your accountant has prepared. Like if I am having my shop and my accounts is being accounted, or I have appointed a accountant for my shop. He will take my all the vouchers. वो क्या करेगा, vouchers लेगा sales के, purchase के, all the expenditures which have occurred during the सीजन में होगा या फिर ड्यूरिंग द ईयर, जो भी मेरा टेन्योर होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा उस टेन्योर के, और वो कंपाइल करके सिर्फ आपको बैलेंस शीट और आपको जो अकाउंट्स रिक्वायर्ड है वो बना के देगा. बट कम और जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं, ऑडिटिंग मीन्स चेकिंग द अकाउंट जो आपके अकाउंटेंट ने प्रिपेयर करा है. सो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ऑडिटिंग में एंड अकाउंटेंसी में. फर्स्ट यू हैव टू नो what is basically auditing means. So let's start this lecture. What does it mean? Basically it means officially conducting a financial inspection of your company or its accounts. तो हम और भी अगर मैं डीप में बात करती हूँ तो आपका ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो चेक बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको चेक करना, उनको नैरो डाउन करना, उसमें से कोई भी जो मिस्टेक है उसको फाइंड करना, एंड इफ़ पॉसिबल टेक द नेसेसरी स्टेप्स सो दैट आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करे गए हैं. And if there any chance of improvement, you can improve that by making the changes in your books of account which is prepared by your accountant. So basically क्या होता है, like आपने एग्जाम दिया, आपने एक तरह से क्या होगा, अकाउंटेंट का काम क्या होता है, like स्टूडेंट्स का काम. स्टूडेंट्स ने पेपर लिखा, बुक आपने पेपर लिखा अकॉर्डिंग टू योर जितनी आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग है, जितना आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है. बट अब काम किसका आता है, टीचर्स. जैसे टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं, सेम अपना जो सीए होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है. वो देखता है कि क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं या नहीं है. इफ दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम एएस बोलते हैं, जिनको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, देन ही हैव टू मेक चेंजेस. बिकॉज अगर हमारे पास बाद में कोई भी पेनल्टी आती है या कोई भी कोर्ट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर ईडी कोई भी केस करती है, देन आपका अकाउंटेंट नहीं पकड़ा जाता. कौन पकड़ा जाता है, सीए पकड़ा जाता है. ठीक है. सो हिस्ट्री एंड ओरिजिन की बात करें हम तो आता है इट इज़ फाउंड इन द जो हमारे आता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन इतने में करी गई थी 3600 टू 3200 बीसी में हमारी ये फाउंड हुई थी. दे हैंडल द रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट ऑन चेक्स एंड बैंक बैलेंसेस इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड. बेसिकली फर्स्ट क्या होता था, फर्स्ट हमारे जब पहले की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी तो क्या करते थे, ऑल द जो रिसिप्ट्स होती थी, वाउचर्स होते थे, उनको रिकॉर्ड किया जाता था, उनको रिकॉर्ड करने के बाद चेक करते थे वेदर दे आर अकॉर्डिंग टू सही है नहीं है। बट अब क्या हो गया, एक टाइम में ही इतनी इतनी ट्रांजेक्शन हो गई दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ से। ठीक है, सो दैट जब आता है ऑडिटिंग, हमारा ऑडिटिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज के टाइम में कोई भी आपका मैनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर करता। एवरी कंपनी इज हैविंग अ बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे वो काम कर रही होती है। ठीक है, सो ऑल्सो मेंटेन इन द इजिप्टियन टाइम में, ग्रीस में एंड इन देयर सिविलाइजेशन में हम बात करते हैं जब ये। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल बी आस्क, मतलब अगर आपके एग्जाम में भी नहीं आता बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। If you are accounting students or if you are a commerce side students, then you should know what's the basic difference between audit and what are different types of auditing. First is your management audit. So what is your management audit? Can anyone please like stop this video right now and please go through the notes which I will provide you in your ग्रुप। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है द बेसिकली द ऑडिटिंग ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है उनका ऑडिट करना, वेदर दे आर अकॉर्डिंग टू द जो बताया जा रहा है एज पर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉट। इफ देयर इज any type of variation or if there is any type of diversion, then the necessary steps are taken. Basically in this process we are managing or we are auditing the your management process. नेक्स्ट इज योर ऑपरेशनल ऑडिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और टाइप ऑफ ऑडिट। ऑपरेशन ऑडिट में क्या करते हैं, वी ऑडिट द ऑपरेशंस, लाइक ऑपरेशंस क्या क्या होगा, लाइक फाइनेंशियल ऑपरेशंस हो गया, आपका मार्केटिंग ऑपरेशन हो गया, या आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट हो गया, ऑपरेशन हो गया। सो इन दिस वी ऑडिट करते हैं, या इन दिस वी विल चेक ईच एंड एवरी ऑपरेशन दैट इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। थॉरो स्टडी करी जाती है, जैसे कि कोई भी आपका लाइक कोई भी ऑपरेशन आपका गलत तरीके से ना हो रहा है। इफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यू कैन एम्प्लॉय इतने ही सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज, तो देन यू विल एम्प्लॉय दैट ओनली। अगर कोई भी वेरिएशन होता है देन इंपॉर्टेंट स्टेप, नेसेसरी स्टेप्स विल बी टेकन एंड इफ नेसेसरी तो आपका वो ऑपरेशन बंद भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कितना आपने खर्चा करा है। लाइक मैंने बोल दिया, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है कि मैंने 2 करोड़ का खर्चा करा हुआ है, तो देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ जो सीए की ड्यूटी होती है, वो चेक करेगा ईच एंड एवरी सप्लायर के पास जाके कि वेदर 2 करोड़ का खर्चा हुआ है नहीं हुआ है, ईच एंड एवरी रिसिप्ट को वो, क्योंकि देखो जो ऑडिटर होता है वो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जो अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट जो सीए होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहा होता, वो किसके लिए, कंट्री के लिए काम कर रहा होता है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता है। सो ही इज हैविंग द राइट कि वो आपकी बेसिकली उसका काम क्या होता है, आपकी गलतियां पकड़ना। ठीक है, तो वो आपकी गलतियां पकड़ के आपको बचाता है, जिससे कि आपके अगेंस्ट कोई भी लीगल सूट ना हो सके। सेम आता है, तो कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, वो ईच एंड एवरी कॉस्ट को देखते हैं कि कितनी कॉस्ट लगी है, वेदर जो नेसेसरी कॉस्ट बताई गई है वो लगी है या नहीं है, या कोई फेक आपकी कॉस्ट तो नहीं इंक्लूड करी हुई है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑडिट। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी एफिशिएंसी है। लाइक मेरी एफिशिएंसी है, किसी कंपनी की एफिशिएंसी है कि वो 2 लाख यूनिट बना रही है, बट एक्चुअल में वो क्या कर रही है, और 10-10 लाख यूनिट बना के बेच रही है, तो वो क्या कर रही है, एफिशिएंटली काम नहीं कर रही, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रही है। ओवर प्रोडक्शन के कारण क्या हो रहा है, जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन चल रही है। या फिर हम ऑन द वाइस इन दिस केस क्या कह सकते हैं, 2 लाख यूनिट की आपकी कैपेसिटी, आप बना रहे हो 1 लाख यूनिट, तो आप 1 लाख यूनिट क्या कर रहे हो कि एफिशिएंसी कम यूज कर रहे हो। सो सीए का काम क्या होता है, ऑडिटर का काम क्या होता है, देखना कि वेदर जो ईच एंड एवरी स्टेप्स है वो सही से लिया गया है या नहीं गया है। इफ द नेसेसरी स्टेप इज रिक्वायर्ड देन जो ऑडिटर होता है वो नेसेसरी स्टेप लेता है। अगर उसको लगता है कि कहीं भी गड़बड़ हो रही है, उसका बेसिकली काम ही होता है आपकी गड़बड़ को पकड़ना।
नेक्स्ट कम्स टू योर ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा अलग से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एच आर ऑडिट। एच आर ऑडिट में क्या होता है, लाइक इफ आई एम द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई एम आई एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन मेरी ऑडिट करी जाती है, मेरे को रिक्रूटमेंट में कितनी कॉस्ट करी है, मेरे ऊपर कितना खर्चा करा गया है, मेरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा गया गया, मेरी सैलरी कितनी है, मुझे कितने अलाउंसेस मिल रहे हैं, मुझे कितने पर्क्स मिल रहे हैं, सबको इंक्लूड करके दिया जाता है। लाइक मेरे ऊपर कंपनी का पूरा 10 लाख का खर्चा है, देन इट इज़ द माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कंपनी को कम से कम 40 लाख का प्रॉफिट दे के चलूँ, या कंपनी को 20 लाख का या 30 लाख का प्रॉफिट दे के चलूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय की जितनी उसके ऊपर कॉस्ट लगी है उसको देखा जाता है, और ईच एंड एवरी जो एम्प्लॉय होता है उसकी कॉस्ट को देखा जाता है, वेदर वो सही लगी है नहीं लगी। अगर उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है और जितना उसको डिजर्व भी नहीं वो करता, तो देन उसको क्या करा जाता है, नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं कि वेदर या तो उसकी सैलरी डिडक्ट कर दी जाती है या उस एम्प्लॉय को हटा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंट ऑडिट। एनवायरमेंट ऑडिट में हम देखते हैं कि आप वेदर यू आर टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स टू सेव योर एनवायरमेंट और नॉट। अगर आप कोई नेसेसरी स्टेप्स नहीं ले रहे हो अपने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, और इफ़ यू आर हार्मिंग योर एनवायरमेंट, देन आपके ऊपर केस किया जाता है, और केस भी नहीं करा जाता तो आपको आपकी CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू आप पकड़े चले जाते हो। इसलिए एनवायरमेंट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट में देखा जाता है जो सिस्टम्स आप यूज़ कर रहे हो वेदर वो बिल्कुल सही है या नहीं है, आपके अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर नहीं होते तो नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं उनको चेंज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट में देखा जाता है वेदर योर क्वालिटी इज़ अप टू द डेट और नॉट। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, देखो कोई भी ऑडिटर है उसका काम होता है कस्टमर्स को, सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना, सेम के सेम अपने जो उसका क्लाइंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना। तो क्वालिटी अगर खराब होगी तो मेन बात आ जाती है कि ऑडिटर ने अगर क्वालिटी देखी भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्वालिटी खाली ये नहीं होती, प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, रिसोर्सेज की, जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसकी। ठीक है। तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू चेक करना कि वेदर द ऑल द रिक्वायर्ड स्टेट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मेंटेन करे गए हैं या नहीं करे गए। नेक्स्ट आता है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं, सोशल ऑडिट में वी विल चेक द कि वैसे वेदर कि आपकी सोशल रिक्वायरमेंट मैच हो रही है या नहीं हो रही। इफ़ सोशल रिक्वायरमेंट इज नॉट मैच, देन नेसेसरी स्टेप्स विल बी टेकन टू अवॉइड दिस लीगैलिटी। ठीक है। टैक्स ऑडिट में चेक किया जाता है वेदर यू आर कंपनी इज पेइंग द टैक्स ऑन रेगुलर बेसिस और नॉट, अदरवाइज इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी स्टेप्स विल बी टेकन टू द फॉर दैट। ठीक है। नेक्स्ट आता है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट में देखते हैं वेदर ऑल द नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सेव योर एनर्जी और नॉट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट which we have discussed in this lecture. In next lecture we will be covering your importance of audit and limitation of audit, why it is very important for an auditor to maintain all this required data. Okay, thanks. If you are having any type of doubt, please do ask me in your on your group, or you can take my number so that if you are having any type of doubts or query, please do ask me in your groups also, or uh, in your group also, or you can contact me through your WhatsApp. Okay, but please do follow these videos on a regular basis, otherwise you will skip your syllabus and it will very difficult for you how you will cover this syllabus. Thank you.